Okay, class, thank you for joining us, joining this class. And today we'll be having a live question answer session on the topic of inequality. And I hope you have gone through the a small and to the point presentation on of inequality. So inequality by the word means like you've heard about inequality in the society, inequality in terms of income. So inequality is usually seen as a negative aspect of development or social justice. So inequality has emerged in the world as one of the core problem, which is creating barriers for economic development, for a sustainable economic development, because some people will be poor, some people will won't have access to better jobs, facilities, education, health facilities. So inequality in the world has been increasing. So generally, when we're talking about inequality, inequality is basically we talk about inequality of wealth distribution or income distribution. Uh, so that brings me another question. I would, because this is a question answer session, so I would ask you, what is difference between income and wealth? Anyone want to discuss what is difference between income and wealth? Sorry. Yes, Isman, please. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जो सर इनकम होती है, लाइक एक अर्निंग होती है, जो हम अर्न कर रहे हो, और जो वेल्थ है वो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ कैपिटल जो हमारे पास पहले से पड़ा हो, वो वेल्थ है। Okay. Yes, Samad. Sir, income, wealth is what you have, and income is what you are earning. Okay. Yes, I am. Same sir as it is Samad sir, same here. Okay. So the point is, okay, wealth is basically can be inherited. Yes, Alia, you want to distinguish something? Yes. So yes, that's what I wanted to say. Income is something you earn, and wealth is either inherited or it is the stored amount of Okay. income जो आपने रखी हुई होती है. ओके, सो जब इनक्वालिटी में बात करते हैं, क्या दुनिया में इनक्वालिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इनकम के इन टर्म्स ऑफ वेल्थ? So definitely in terms of wealth. Okay. Yes. Okay. So but income inequality is also there. For example, gender discrimination, which women are paid less for the same job, same you can say post, uh, in the private sector, at least for the government, regardless of gender, you get equal pays. So income inequality is also there in terms of this gender, especially in terms of gender inequality in income is also there. So okay, can we the point is here is, can we manage the wealth inequality, or can we manage income inequality? इनक्वालिटी खत्म करना चाहते हैं आप? वेल्थ इनक्वालिटी खत्म करना आसान है कि इनकम इनक्वालिटी खत्म करना आसान है? यस, अहमद. Sir, both can be managed, I think, sir. Okay, right. Okay. Yes, yes. Okay, good. Yes, Arham. सर इनकम मैनेज करना इजी है, वेल्थ Yes. को हम लोग मैनेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर पर्सन की अपनी थिंकिंग है, वो अपनी इनकम को किस तरह यूज करता है। जितनी वो ज्यादा सेविंग करेगा तो वेल्थ उतनी ज्यादा वो कर सकता है अपनी। Yes. So yes, income inequality is, we can manage it better than wealth inequality. Wealth inequality, इसने इन्वेस्टमेंट की है, सेविंग्स की है, whatever, वो वेल्थ बनती गई है. वेल्थ के ऊपर टैक्सेशन वगैरह लग सकते हैं, लेकिन इनकम इनक्वालिटी फॉर द गवर्नमेंट इट्स इजियर टू मैनेज, रिलेटिवली इट इज इजियर टू मैनेज. ओके, अब ये आम फिलॉसफी है, एवरीवन नोज दिस कि जी द मोर रिच यू आर, द मोर अर्निंग यू हैव, हायर द टैक्सेस आर. ओके, दिस इज वेरी अपेरेंट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, एंड इन रिसेंट ईयर्स साउथ एशिया में भी, मिडल ईस्ट में भी ये चीज आना शुरू हो गई हैं कि द मोर यू अर्न, द मोर हायर टैक्सेस यू पे. Okay, now the next point which arises is that, does this inequality or different types of inequalities, does they hinder economic growth? जिस तरह हम बात करते हैं आपकी, let's say wealth inequality, gender inequality, racial inequality, does it impact your economic growth? Okay,
before that, let's discuss on what are the potentials drawbacks for inequality, increasing inequality. Inequality is already there. Inequality बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? आपकी सोसाइटी में inequality बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? What are the extreme forms of inequality? Like we have also talked about capitalistic and socialistic society, जहाँ wealth or income inequality is main, everything rests with the government or the public. So inequality, is it more in capitalistic societies or socialistic societies? Like, I'm not saying socialist societies, I'm saying society which are inclined towards socialism principles. Yes, Hamza. सर जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज होती है ना, उनमें ज़्यादा ये इनक्वालिटी होती है, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ द जंगल होता है, वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला एक होता है, लेकिन इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इधर हो रहा है। तो जो जितना रिच है वो और रिच होता जाएगा, जो पुअर है वो पुअरर होता जाएगा। तो ये कैपिटलिस्टिक में ज़्यादा जो है ना इनक्वालिटी होगी। Okay, good. Yes. Anyone else? Okay, so Hamza raised an interesting point that okay, inequalities is there. So if you have heard about the proverb, let me write this here. This is a very common proverb used by capitalistic societies. So that is a saying among these some politicians as well, that should it be like, if you are in a socialistic society and everyone should be miserable, it's fine if everyone is miserable. But the capitalistic societies, they're trying to say that inequality, if someone is happy, at least someone is happy. Okay, so inequality is inherent part of the capitalistic society. We've talked about it as well. Now, this in your opinion, what is better? Okay, this is I'm just saying this is a biased saying from the capitalistic world. So what about your opinion? Am I right, or like, what is your stance? Kindly raise your hand before unmuting. Yes, anyone? Yes, Hamza. सर सेइंग किसी हद तक आप कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि अगर इक्वालिटी आ भी जाए ना, तो हुज टू से कि जो है ना, मुल्क के अपने हालात को देख के होगा ना। अगर मुल्क ही कमज़ोर है, पुअर मुल्क है, तो सबके लिए बर्बादी है। और अगर अमीर मुल्क है तो फिर आप अगर देखें ना, यूएसए की इकोनॉमी में आप सोशलिज्म ले आए तो सबके लिए फिर हम मज़े ही मज़े हैं। तो ये सर मुल्क पे देखना पड़ेगा। Okay, ठीक है. So yes, Sher Alam. Sir, what I want to say may be a little off topic, but I think that happiness is an abstract concept. Like Pakistan is economically poor, but it is a happy country. So Okay, money cannot buy happiness. I would suggest that. okay, that's fine. That's understandable. Yes, Rida. सर मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये है कि इक्वालिटी और इक्विटी में फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि मतलब इक्वालिटी को नहीं कंसिडर करना चाहिए, हमें इक्विटी को देखना चाहिए ज़्यादातर, कि जहाँ नीड हो वहाँ पे हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोशिश करें। और सर इससे मेरे ख्याल में ये इक्वल मिजरी जो है वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जिसको ज़रूरत भी नहीं है तो उसको मतलब प्रोवाइड करें, और जिसको ज़रूरत है तो उसको मिल नहीं रहा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। सर मेरा ख्याल में यही। Okay, मैं yes, let me put it this way. आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके पास वाटर के कुछ रिसोर्सेज हैं, तो या तो सबको आप थोड़ा थोड़ा पानी दे दें या सबको पानी ना दें। जबकि एक एरिया में ये मैं रिसोर्स की बात करूंगा कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आपके कुछ
लोगों को रिसोर्सेज मिलेंगे और वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे, कुछ लोगों को रिसोर्सेज ना मिले। तो दिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ओके, यस अहमद आरिफ, आप कोई ऐड करना चाहेंगे? सर मैं इससे एग्री नहीं करता सर, इस प्रोवर्ब से सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट सेंट्रिक है। और सर जो रियलिटी है सर उससे काफ़ी दूर है सर। क्योंकि सर अगर हम सिर्फ अमेरिका और जो प्योर सोशलिस्ट कंट्री हैं सर, उनकी मिसाल देखें तो सर किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं। पर सर जहाँ जिस तरह हम यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं सर, जहाँ सोशलिज्म के कुछ असूल फॉलो किए जाते हैं, तो सर वहाँ तो ये चीज़ नहीं है सर। दूसरी एक आपने जैसे रिसोर्स की बात की सर, तो सर देखें सर, जो टॉप 1% जो पॉपुलेशन है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा मनी है सर, उनके पास इतना ज़्यादा मनी है कि सर मतलब सर वो एक चीज़ होती है ना कि थोड़ा थोड़ा भी अगर वो डिवाइड करें तो सर ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा सर, सबको काफ़ी मिल जाएगा सर, मैं ये समझता हूँ सर। तो सर ये जो प्रोवर्ब है सर, मैं इसे पर्सनली एग्री नहीं करता। Okay, this is a statistics showing that for just cosmetics की जो इंडस्ट्री सेल है अमेरिका, वो $8 बिलियन है, जबकि $6 बिलियन से आप पूरी दुनिया को एजुकेशन फ्री बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज सम स्टैटिस्टिक्स के $9 बिलियन से आप पूरी दुनिया में वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूरोप में सिर्फ आइसक्रीम $11 बिलियन की बिकती है। So what are we saying? Is it like they are statistically या आप देख लें इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, इतना पैसा दुनिया में मौजूद है, इतने रिसोर्सेज दुनिया में मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि क्यों नहीं होते। अहमद की बात से, अहमद ने जो बात की टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड या इस तरह की हम जो बातें करते हैं, दैट आल्सो रिमेन्स ट्रू। यस मरियम। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी हमारे कॉन्टेक्स्ट से। अगर हम जीडीपी को देखें तो उसका जो पब्लिक डेवलपमेंट की परसेंटेज है, उसमें हेल्थ की जो परसेंटेज है उससे ज्यादा हमारी रेलवे की परसेंटेज है, और उससे ज्यादा हमारी फाइनेंस डिवीजन की परसेंटेज है, और उससे भी ज्यादा अगर ये 14 है हमारी हेल्थ की 14,000 मिलियन रुपीस, सॉरी बिलियन रुपीस, तो एनएचए की है 118,000 बिलियन रुपीस। तो हेल्थ जो प्रायोरिटी है वो तो अब हमें मिल ही नहीं रही है। ओके सो आपकी ये इस पॉइंट से हम दोबारा थोड़ा सा जो आप डिस्कशन लेके जा रही हैं बजट की जो रिसोर्स एलोकेशन है, ओके वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा, दैट लाइक इनइक्वालिटी की तरफ आई डोंट नो हो जाएगा, वो इट इज मोर टुवर्ड्स योर सेक्टर प्रायोरिटीज या गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल सिस्टम की प्रायोरिटीज हैं। ओके हम वी शुड रिमेन इन इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। सो लेट मी गो बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। सर हेल्थ नहीं आएगा उसमें, क्योंकि हेल्थ एक सेक्टर है जो नहीं देखे ना, होलिस्टिक। ओके हेल्थ की उन्होंने इतने $1 बिलियन कर दिए, लेकिन द पॉइंट इज अगर उस बिलियंस उतने मिलियंस में आपका पूरी हेल्थ कवर हो रही है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इक्वल एक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, पॉइंट इनइक्वालिटी का वो है। ठीक है, रेलवे पे बेशक $1 बिलियन लगाएं, $1 मिलियन लगाएं, अगर सबको रेलवे की फैसिलिटीज मिल रही हैं देन दैट्स फाइन, वो इनइक्वालिटी नहीं है। हम इनइक्वालिटी आप जो बात कर रही हैं वो कर रही हैं कि इस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगना चाहिए, इसमें कम, ये इनइक्वालिटी नहीं होती। दिस इज नॉट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज कि सबको बेसिक सर्विसेज मिल रही हैं, और लेकिन एक बेसिक सर्विस एग्जिस्ट करती हैं, चले वो तो करती हैं, और सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही, कुछ लोगों को ज्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को कम मिल रही है, दैट इज इनइक्वालिटी। वो तो फिर हम ये जो आप बजट की तरफ जा रही हैं, दैट इज आई मीन इट्स लाइक गोइंग अवे फ्रॉम द इनइक्वालिटी टॉपिक, इट्स मोर टुवर्ड रिसोर्स एलोकेशन या बजट एलोकेशन, फाइनेंशियल और ये सिस्टम सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात कर रही हैं आप। आई होप मरियम आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। जी समझ आ गया। ओके ग्रेट। ओके कमिंग बैक टू द इनइक्वालिटी, तो हम इसके बैड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? एनीवन? यस हमजा। सर इससे डिवाइड पैदा हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, ऐसे क्या कह सकते हैं, कास्ट कह सकते हैं कि ग्रुपिंग बन जाएगी अमीर की और गरीब की, और जब ये डिवाइड ज़्यादा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अमीरों की तादाद कम होती जाएगी, गरीबों की तादाद ज़्यादा होती जाएगी,
और फिर इवेंचुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी इन दी एंड. ओके, यस शेर आलम. सर बेसिकली जो सोशल इनक्वालिटी है वो लीड करती है टुवर्ड्स सोशल इश्यूज. तो जितने ज़्यादा सोशल इश्यूज होंगे उतना ज़्यादा जो सा एक बैकवर्ड इफेक्ट आएगा किसी भी नेशन के ऊपर थ्राइव करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए. ओके, लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आई मीन सोसाइटी को हम बैक अगेंस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए सोशल वेलफेयर इज इट इन अ बैक सीट. हमने उसको ज्यादा लीस्ट प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, तो हम सोशल इश्यूज की तरफ तवज्जो कैसे दें, क्योंकि उसमें हमारी कोई टेंजिबल चीजें नजर नहीं आती. तो द पॉलिटिशियंस एंड द गवर्नमेंट्स दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज समथिंग व्हिच इज फिजिकल, व्हिच इज समथिंग व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग. तो सोशल इश्यूज को एग्जामिन करना, उसको क्वांटिफाई करना, इट्स वेरी ट्रबलसम, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट सोशल डिवाइड को मेजर करना इट्स बिकमिंग एन इशू. यस रिदा. सर मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये था कि इनइक्वालिटी सर जब बढ़ जाएगी तो सर उसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो सर मतलब गरीब लोग ज़्यादा हो जाएंगे और फिर क्राइम रेट्स वगैरह बहुत बढ़ जाएंगे. सर वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल आ जाता है. ओके ओके, यस रिदा, गुड पॉइंट. सो अभी हमजा ने भी बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की. आई डोंट नो इफ मैंने अगर कैपिटलिज्म में आपको सुनाई थी ये, आई मीन द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट की. एनीवन, डिड आई टेल यू दिस? सर आपने मेंशन किया था. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में द ब्लडीएस्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसमें प्रिंसेस ने आई थिंक कहा था कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, एंड दे उन्होंने कहा जी उनको ब्रेड नहीं मिल रही. ब्रेड की किस्म बोली थी, तो उन्होंने कहा था कि तो उनको को केक खा लें. सो द पॉइंट वाज इनइक्वालिटी, लाइक इतनी ज्यादा जब आपकी पॉवर्टी हो जाए. ओके, एक जिस तरह रिदा ने बात की, पॉवर्टी पुअर लोग ज्यादा हो जाएंगे. सो बात ये नहीं है कि पुअर लोग ज्यादा हो जाएं कम हो जाएं, बात ये है कि पुअर इतने ज्यादा हो और उनमें जो अमीर हो उसमें इतना ज्यादा गैप हो, इतना डिफरेंस हो. दैट इज इनइक्वालिटी. नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज होना इज नॉट, इट्स ओके डेवलपमेंट इशू है ये ऑफ कोर्स, बट ये इनइक्वालिटी का इशू नहीं है. ओके, अब इनइक्वालिटी जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कह सकते हैं, आपकी माइनॉरिटीज, जेंडर, एज वाइज डिस्क्रिमिनेशन, ये जो सारी चीजें ये इनइक्वालिटी पैदा करती हैं, ये चीज नहीं होने देनी. सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो वी विल गो इनटू द, जब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे उसमें बात करेंगे. ओके, सो इन सस्टेनेबल सोसाइटी कह लें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा, वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा which is facing the world. So it is basically a part of sustainable development goal as well, reducing inequality. So then we came to the words of inequality and disparity. कि हमारा अर्बन प्लानिंग के साथ या फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी के साथ इनइक्वालिटी का क्या रिलेशनशिप है. ओके, सो इनइक्वालिटी इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम, इकोनॉमी, फाइनेंस, डॉलर्स, बिलियन रुपीज, inequality, whereas disparity are basically through access to different services. That is disparity, or exist availability of certain facilities and accessibility to everyone. So urban planning के जो concept में हम बात करते हैं या उस let's say उस discipline में हम कहते हैं कि शहर के हर बंदे को हर facility मिलनी चाहिए. Right? Urban planning का एक goal है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, इक्वल फैसिलिटीज फॉर एवरीवन. पानी अगर सबको मिल रहा है, पानी सबको मिलना चाहिए और साफ सुथरा मिलना चाहिए. क्लीन सैनिटेशन सर्विसेज, सबको सैनिटेशन मिलना चाहिए, साफ सुथरा मिलना चाहिए. ओके, सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रोड एक्सेस सबको मिलनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको मिलनी चाहिए. सो इस तरह के डिफरेंट जितने एजेंडाज आते हैं अर्बन प्लानिंग में, उसका इनइक्वालिटी से ताल्लुक होता है. एक्सेसिबिलिटी का, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ. Then अगर हम financial accessibility की बात करें, then वो we are going into inequality as well. So disparity, development. या हमारा जो पिछले दफे में बात कर रहे थे, I think development की बात करते हैं तो हम housing scheme से बात करते हैं. कितने परसेंट हाई इनकम प्लॉट देने चाहिए, कितने लो इनकम प्लॉट देने चाहिए. लैंड सबको मिलना चाहिए, घर सबके लिए होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए. राइट? सो उसके लिए हम इक्वालिटी करने के लिए अपने किस तरह करेंगे डिजाइन.
कितना डेवलपमेंट करें, शहर को कितना डेवलप करेंगे. So it is all the some this philosophies of inequality are more or less reflected urban planning. जो आपका डिजाइन कह लें, आपकी अर्बन पॉलिसीज कह लें, स्ट्रेटजीज कह लें, और जिस तरह का भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, you want to give the benefit, maximum benefit to the society, regardless of their political influences, regardless of their gender और कितना गरीब है कितना पुअर है. अर्बन प्लानिंग इन सबको एक लेवल पर देख के सबको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है, राइट? अर्बन प्लानिंग, दे वांट टू ऐड समथिंग अबाउट इनइक्वालिटी, disparity, basically. Urban planners. Anyone by anyone? Yes, Samad. सर अगर अर्बन प्लानिंग के केस में भी देखें तो सर ज़्यादातर हमारी पॉलिसीज ऐसी होती है सर जो कि जो रिच होते हैं उनको ही सपोर्ट करती है. जैसे कि हम औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो था सर, या खुदा की बस्ती, उनकी एग्जांपल ले लेते सर, तो वो भी जो क्या कह सकते हैं प्रिविलेज लेस प्रिविलेज्ड लोग थे उनके लिए थे बनाए गए थे. लेकिन सर एट द एंड वो दोनों भी नाकाम हो गए, इसीलिए कि मतलब उसमें पॉलिसी सी कुछ ऐसी थी सर कि जो लेस मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी थी वो इसके लिए वो अफोर्डेबल थी ही नहीं. तो हमारी पॉलिसीज ही इस तरह से है कि सर वो रिच को सपोर्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्पैरिटी फिर आ जाती है. Okay. So, do you think that our policies are capitalistic in nature? Yes, sir. Okay. Yes. Anyone, if they want to add something? Okay. So, हमारा जो काम है inequality या disparities measure करना, this is too much straightforward. Okay. The point जब हमारा आता है कि inequality, जिस तरह कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहते हैं जी, ये इनोवेशन आती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और इनइक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम. आपको लेबर चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए. अब इकोनॉमिक ग्रोथ का इनइक्वालिटी के साथ क्या ताल्लुक है? सो जनरली अगर इससे बात किया जाए कि जी हम कैपिटलिस्टिक, जितना आप सोसाइटी ओरिएंटेड होगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, एंड इफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और इनइक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ capitalistic society, then there must be a positive correlation between economic growth and inequality, right? But on ground, depending upon different situation and context, they have observed that some people have researched that there is no relationship, while others have said that there is a positive relationship in the beginning, but in the long term it becomes negative. Kuznets curve. And again, this, so but mainly, or like you can say most of the time it is by the, I think, I would not quantify it, but majority of the economists, or you can say development economists, they say that inequality is bad for your economic growth, for sustainable economic growth. Maybe in the start आपको बहुत अच्छा लगे जी, आपके पास लेबर है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रियां खुल रही हैं, लेबर पे लेबर लगी जा रही है आपकी, तो इनइक्वालिटी ठीक है, होनी चाहिए कि ना, क्योंकि ये लेबर आ रही है, चीप लेबर है, हमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है. बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक. जब अवेयरनेस आएगी, जब सोसाइटी में लोगों को अपने राइट्स का पता चलेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, ये करेंगे, तो इन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ वोंट बी सस्टेनेबल अगर इनइक्वालिटी रहेगी. सो नाउ दिस इज एम्पिरिकल एविडेंसेस. By empirical evidences, on ground जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, आपका जीडीपी के साथ कोरिलेशन, आई वुड नॉट से कोरिलेशन, आई वुड से रिग्रेशन लगाया जाता है, इन्फ्लुएंस चेक किया जाता है एक दूसरे के ऊपर. सो a lot of theories are already there, but the most famous Kuznets theory is very much true because it has been tested in several countries and it is found to be true. Generally true for generally true in the world. But हो सकता है आपके कुछ एरियाज में, कुछ सिटीज हैं लेट्स से, जो इंडस्ट्रियल नेचर की हैं, मे बी वहाँ इनइक्वालिटी, well, it all depends upon the data if we have the data. So it has been tested and it has been found that inequality and economic growth, they have a very good relationship in the beginning, but in the long term inequality is bad for your sustainable economic growth. Any question till now, or anything to want to discuss?
Anyone? So do you agree that inequality is bad for economic growth, or is it no inequality should be there? Yes, Sher Alam. Sir, I think that inequality is required for economic growth, because if equality is there, there would be no impulse or to the people who are in the lower tier. There will be no social mobility. There will be no desire or thrive to jump to the upper tier to work hard. This is what I तो think. इसका मतलब है उन लोगों को डिप्राइव रखें, उनको फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करें, उनको एजुकेट ना करें. सर मेरा ओपिनियन ये था कि अगर इक्वालिटी है तो देर वुड बी नो इम्पल्स. अगर इक्वालिटी है, हर बंदा इक्वल है, तो देर वुड बी नो. अगर इनइक्वालिटी है तो जो लोग अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या अपने आप को बेटर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस या वेल्थ, उनके पास एक थ्राइव होगी, डिजायर होगी टू वर्क हार्डर. Okay, understandable. That is true. Okay, good, Sharan, good point. Yes, that as a human being we need to strive for improving ourselves, and if there is no like aim or target in our life, then we might not thrive or we not struggle for that. Okay, Yes, that's sir. good intake. Yes, okay, I agree. Yes, anyone else? Yes, Ahmed. सर ये जो आपने पॉइंट डिस्कस किया था सर, इसी में कि सर गुड इनइक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, पर जो बैड इनइक्वालिटी है सर वो नहीं होनी चाहिए सर. के मिनिमम सर लोगों को इतना उनके पास रिसोर्स होना चाहिए कि सर वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल सर अफोर्ड कर सकें सर. उससे ऊपर सर जो मतलब उस मिनिमम जो एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल से ऊपर सर अगर कोई करना चाहे तो वो बेशक एक्स्ट्रा एफर्ट करके सर कर ले, जिस तरह वो गुड इनइक्वालिटी के केस में है सर. सर मैं ये समझता हूँ. Okay, good. Okay. Yes. So of course, these are all valid reason, valid arguments. So, but in terms of like development या economic growth की हम बात जब करते हैं, तो हम किस तरह measure करते हैं आप economic development को? What is the measurable unit for economic development? Anyone? Economic development कैसे measure करते हैं? Quantify कैसे करते हैं? Yes, Alia. GDP growth से. Okay, GDP growth. Okay, and my next question. Yes, Ahmed. Your opinion? Sir, same sir. GDP. GDP. GDP And what is GDP? What हमने word तो बहुत सुना GDP per capita. Okay, gross domestic product. I know GDP per capita is a kind of a unit for measuring economic growth. How do you define GDP? What is GDP? Yes, Sharalam, you want to add something? What are the other ways to measure economic growth? Sir, I just wanted to comment on what is economic development. Sir, I have read before that economic development is not only about the statistics, and it should incorporate the human development index that measures the health, living standard, the happiness, as well as the statistics that may include the GDP. And sir, I think GDP. Okay, yes. Economic growth, sir, can only be measured by statistics, but economic development is something which should have the abstract concepts of happiness, decent living style, health, and other education, such things. Okay. I got your point. So development is basically you're saying you're arguing that basically development is a more all included or a very holistic or a broader word for economics. So economic growth is practical. Okay, generally in terms of economic literature, economic development is you could say it is simultaneously used by the word economic growth or economic development, and most of the time it is usually measured in terms of monetary or fiscal or financial measures or quantification methods. Okay, so yes, I will argue on this. I will explain this in the coming slides. What is human development? Okay. Yes. Anyone? What is GDP? Most probably you might have now आपने Google कर लिया होगा अब तक. What is GDP? बातें तो हम करते हैं कि GDP per capita, GDP per capita. What is GDP? Gross domestic product या gross national product? GNP पे measure करते हैं या GDP पे measure करते हैं? Anyway.
Sir, I think GDP constitutes the difference between exports and imports, the surplus, and sir, the consumption basically, the domestic consumption, the investment done by government, and there are some other factors, sir, as far as I remember. Okay, got. So domestic, local, within a certain boundary. Product, something which is being made. Some product, services, technologies. These are products. And what is the monetary? उसकी value क्या है? वो उस border से बाहर कितने में बिकेगा? That is GDP per capita. और उस products और services को सबको add करके कहते हैं gross domestic product per capita. So GDP per capita. So generally, अब इस पे एक और argument आते हैं और वो that are also very valid arguments by the way. That GDP is not a very good measure to measure an economic growth. जिसना शेयर आलम ने बात की कि GDP generally economist or overall क्योंकि एक proxy indicator है. How are you going to quantify a skill? How are you going to quantify let's say technology or let's say my achievements, let's say my research, for example. How do you quantify that? Okay, so in that terms, it is also very much arguable that GDP is not a realistic measure for economic development. But that is still, that is the only measure we have, or you can say, which is acceptable all over, which is, you can say, generalizable all over the world. So GDP per capita is used as a proxy indicator to measure your economic growth. Right? Clear? Anyone? GDP क्या clear हो गया? If not, that was the time. Okay, so coming back, so we were talking about this GDP or GNP, gross national product, in which now we are saying that जैसे जैसे आपका GNP ज़्यादा होगा, gross national product, inequality. Now Gini coefficient is a method, is a tool, is a, you can say, a mathematical or statistical measurement method जो बताता है inequality की value from 0 to 1. 0 means no inequality, perfect equality, and 1 means perfect inequality. 0 to 1, Gini coefficient. In the next lecture, I will okay, I'll try to explain because it's mathematics, so I'll try to explain अगर मैं यहाँ कर सका. So Gini coefficient is a method to measure inequality. So जितनी inequality ज़्यादा होती जाएगी, Gini coefficient बढ़ता जाएगा GNP के साथ relationship. Okay. So, okay, now these are some different attributes. This is too simple. Any questions regarding factors in contributing to inequality? Okay, अब हम शेयर आलम वाली की बात करते हैं कि जी डेवलपमेंट एज जनरली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ में बात करते हैं, बट जो अमर्त्य सेन ने बात की कैपेबिलिटी अप्रोच पे, उन्होंने कहा कि वी आर मेजरिंग इकोनॉमिक या डेवलपमेंट वी आर मेजरिंग इज रॉन्ग. डेवलपमेंट को इकोनॉमिक टर्म्स में देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर मोर कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन या सो हमें फोकस होना चाहिए इसकी तरफ. सो हमारा जो पुराना फिनोमेना टुवर्ड सारा कैपिटलिस्टिक एजेंडे की तरफ था सारा फोकस्ड, वो सोशलिस्टिक साइड पे आ गया कि लेट्स वर्क टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटीज, सोसाइटीज. तो उसमें अमर्त्य सेन he is a Nobel laureate which gave the concept of capability, in which he emphasized that instead of measuring GDP, we should measure capabilities of a person or opportunities to a person, what a person can do or able to do. So according to this definition, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं? Right? What are you able to do and what can you do it? आप चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन, ये लेट्स से जो आपके डिफरेंट सर्विसेज, हेलो आवाज तो नहीं कट रही? रिजवान आपको आ रही है आवाज वीडियो? जी सर आ रही. ओके, सो अच्छा मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था. ओके, so coming back, so I was talking about जब हम इंटरनेशनल, आप अपनी कोई आपका कंपटीशन देखें आजकल हर जगह
खाने पीने के लाइट से दुकानें खुल रही हैं, आप उस मार्केट में अपनी जगह कितने जल्दी बना सकते हैं? आर यू एबल टू डू दैट? Okay, so that is a part of like human development or your capabilities to enter into the market. उसके मुताबिक उसने कहा कि अगर ह्यूमंस को भी मैयर करने के लिए ह्यूमन की कैपेबिलिटी कैसे मैयर की जाए, so he gave concept that let's move from economic development to the concept of human development. So he and Mahbubul Haq gave HDI. उससे पहले भी इंडेक्सेस मौजूद थी, ये आपकी सोशल प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन अमर्त्य सेन ने क्योंकि एक लेट से कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट किया था आपकी थ्योरीज में, तो HDI इंडेक्स became one of the most famous index in the world to measure level of development in terms of human. Economic development को हमने उसको हटा दिया. So we are talking about people in terms of life expectancy, education and income. So income was a component of HDI, not a sole measurement unit. Mahbubul Haq, by the way, is Pakistani. So a Pakistani economist with Amartya Sen from India, both of them worked together. Both were economists. Both were working in UNDP. Both of them developed HDI. So the world famous index, HDI index, was developed by a Pakistani and an Indian together. Just a fun fact. Okay. So then later on, quality of life was given, and quite recently, we have now worked on towards multi-dimensional poverty index. So हम जब poverty की जिस तरह बात करते हैं, जब हमारे साथ argument शुरू हुआ था, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि poor लोग ज्यादा होते जा रहे थे. रिदा ने कहा था, I think poverty में poor लोग ज्यादा होते जाएंगे. तो how do you measure poverty? Right? The question arises poverty. तो poverty क्या we only और जनरली काफी हद तक हम इसी तरह मेजर करते रहे हैं कि poverty is जिसकी इनकम $2 से कम हो, $1 से कम हो, whatever is your criteria which you threshold आप रखते हैं, या जिसकी बेसिक नीड्स ना पूरी हो रही हो, या जिसका बेसिक कैलोरी इनटेक की जो वैल्यू है उसको पूरी मिल रही हो ना मिल रही हो, जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको मिल रही है, उसको 3 टाइम्स खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसमें जो कैलोरी इनटेक है वो उसकी नीड्स के मुताबिक है कि नहीं है. That is poverty. Okay. So, any question till now? Please, you can raise your hands if you want to add something, debate something, anything. Yes, Alia? Sir, isn't sometimes poverty a choice where people purposely don't want, मतलब पाकिस्तान के केस में at least, I would say कि beggars जो होते हैं, they beg on the street and they earn a lot, but they purposely choose not to own houses. They purposely choose not to go to schools or put their children in schools. Even government made facilities में इनको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं और ये वहां से भाग जाते हैं because they don't want कि वो उस सिस्टम में रहे, वो खाना खाए, वो करें. They want their freedom and they want कि जिस तरह वो पैसे कमा रहे हैं उसी तरह वो कमाते रहे. And they are in most cases under malnourished. But the way of life जो उन्होंने choose की होती है, it is their choice. वो अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं उस तरह. That's a very okay. Yes, Ahmed. सर कुछ केसेस में मैं एग्री करता हूँ कि सर ये होता है कि सर जो क्रिमिनल्स हैं सर वो ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं कि लोगों को गरीब रख के सर एक मतलब उन्होंने अपना एक कह लें कि सर धंधा खोला होता है कि सर ये मांगने वाला सर पर दूसरे जो ओवरऑल सर हम इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि सर मेरे हिसाब से सर जो मुझे लगता है सर वो ये है कि सर अवेयरनेस की कमी है सर कि सर इन लोगों को अवेयरनेस की इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि सर ये अगर स्कूल में जाएंगे तो इनको क्या फ़ायदा होगा सर, कहाँ तक उनको मतलब वो इस चीज़ पढ़ाई से या इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं. तो सर मैं समझता हूँ कि सर अवेयरनेस की कमी है सर, इस वजह से सर लोग जो है वो इस तरफ नहीं आते. और सर दूसरी जो चीज़ के मेंटालिटी भी सर यही है कि सर
कुछ लोगों को सर समझ नहीं होती कि सर हमने किस तरह ग्रो करना है सर, किस तरह हमने सर पॉवर्टी से बाहर निकलना है सर। तो सर अगर एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों को दे दी जाए तो सर काफ़ी हद तक सर ये जो मसला है कि जो इन्होंने डिस्कस किया कि जो बाय चॉइस, तो सर ये हल हो सकता है सर। ओके ओके, चलें, ये मैं इस आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। मैं आई वुड लेट्स स्टे ऑन टॉपिक। ओके, सो हम एचटीए की बात कर रहे थे। तो एचटीए में हम जो इसको भी मेजर करते हैं, जो इंडेक्स होती है, आमतौर पे इंडेक्स की जो हम बात करते हैं 1 to 5, 0 to 1, ट्रांसफॉर्मेशन स्केल किसको कहते हैं हम अक्सर? 0 to 1. 0 mean the least developed, 1 means, yeah, let's say 0 is the worst value and 1 is the ideal value. So HDI is also measured along the same principles in which 0 is your least and 1 is the highest. So इसमें आप देखें कि दुनिया में नॉर्वे या let's say Scandinavian countries most of the time are leading in terms of HDI. Pakistan is ranking 154th out of 189, around 0.557 HDI according to 2020 report. So अभी हम ये इनइक्वालिटी की हम विद इन सोसाइटी बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ देखें कि हम दुनिया में कितने अनइक्वल कह लें या कितना पीछे हैं। So यहाँ ये भी also kind of reflects in global inequality in the world in terms of human development index. Okay, जो हम बात कर रहे थे multidimensional index, which is overtaking the concept of economic poverty. We are talking about, इसमें हम बात करते हैं deprivation, जिसको accessibility नहीं है किसी खास सर्विसेज पे. It includes nutrition, child mortality, education, and your living standards. So they have divided around the 10 indicators with certain weightages, and then we can measure your multidimensional poverty index in a country. So उसमें poverty wise इसमें index में आप देखें कितनी inequality पाकिस्तान में exist करती है with respect to district. So kind of your northern Punjab or central Punjab is relatively more, you can say less poor or more developed in terms of human development than as compared to your southern Sindh or your Balochistan or FATA. I think FATA, we don't have the data for FATA, right? In this year, we don't have data for FATA and Gilgit-Baltistan and AJK. So do you think that this is called kind of a spatial inequality? So inequality की अगर हम बात करें, this is spatial inequality. अगर हम इसको टाइम सीरीज में ले जाएं कि पहले कितना डेवलप था, अब कितना डेवलप हुआ है, that is your temporal inequality. So हम चाहते हैं ये inequality कम से कम हो. Okay, so poverty this is one of the measures. This is the let's say we start making maps या GIS के जो है maps बना लेते हैं, visualize करवाएं. So in terms of let's say आप कुछ भी indicator उठाएं, let's say access to hospital beds per population. हमने ये बात मेरे ख्याल में क्लास में भी की थी, बोर्ड पे लिख के, there are certain ways to measure healthy education की development. अब इन सब indicators को overlay करके हम देखें तो हम पूरे पाकिस्तान में एक तरह की inequality को find out कर सकते हैं. Why certain provinces or why certain districts or why certain cities are more developed as compared to rest. कि कम से कम चले हम बाहर की दुनिया से तो कंपेयर नहीं कर रहे, हम विद इन पाकिस्तान कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी तो कम होनी चाहिए ना. एनीवन वांट टू, आपका क्या स्टांस है स्टूडेंट्स? सारे सो रहे हैं, क्या हुआ है? सॉरी सर, रिपीट जरा कर देंगे? अच्छा, मैं हमजा ये बात कर रहा था कि हम कहते हैं ना कि हम एचटीए में बात करते हैं कि जी वो उनकी इतने डेवलप्ड हैं, हम इतने पुअर हैं, तो चले हम उनकी बात ही नहीं करते, हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बात कर लेते हैं. पाकिस्तान में इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? तो बाहर के मुल्क में तो हम नहीं कह सकते जी उनके पास जी ये भी है, उनके पास वो भी है, उनके पास वो भी है. हम सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं. तो हम ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज एक शहर में वो दूसरे शहर तक जा सकती हैं ना, तो इनइक्वालिटी पाकिस्तान में कम होनी चाहिए, या विद इन प्रोविंसेस या विद इन कंट्री कम होनी चाहिए. बट द थिंग इज, मैप में देखें कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है. ये समझा सर? इसकी वजह मैं जानता हूँ क्यों. क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो हमें क्विकली डेवलपमेंट करनी थी, तो हमने सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की है पंजाब के अंदर.
और जबकि ज़्यादातर वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर भी, और हर एक चीज़ को फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने सब कुछ पंजाब में फोकस किया, स्पेशली बिकॉज हमारी ज़्यादातर आबादी रहती पंजाब में है, तो इट वाज मोर फीजिबल एट द टाइम। तो उसकी वजह से पंजाब हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो गया है, और बाकी सारे अपनी जगह पर ही हैं अभी तक। क्यों है, पॉइंट ये है क्यों है अभी तक। ओके, सो अब हम पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम्स तो हम करते रहते हैं। ये आपका बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये इट्स काइंड ऑफ अ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम which is aimed towards reducing the poverties, और लेट्स से पॉवर्टी कम करना या इनइक्वालिटी को कम करना की तरफ जा फोकस है हमारी। सो हम जो करते हैं जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, तबीर पाकिस्तान स्कीम, ये डिफरेंट, अगर आप पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान उठा के देखें तो ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स ओवर द ईयर्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च किए हैं इनइक्वालिटी कम करने के लिए। सो यस सालिया। सर यू जस्ट सेड के मतलब अभी तक क्यों है ये हमारी ये इतनी differences? I guess this is because of cultural constraints as well. Yeah, the way culture pushes people कि वो एक certain lifestyle choose करे living in a certain region. ओके, आप जो पर्सनल चॉइसेस की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी मच आर्ग्यूबल, एंड So not मेरा just स्टांस personal डिफरेंट है। choices, but मेरा स्टांस डिफरेंट है। मेरा not स्टांस डिफरेंट है। no one wants to be poor, no one wants to live in these conditions, poor conditions, living conditions. But again, ये डिस्कशन कोई और निकल जाएगी। I want to stay on topic. Yes, course, समझ। sir, nobody wants to be poor, but cultural ways भी होते हैं। मतलब हम एंथ्रोपोलॉजी जिस तरह कल्चर को रीड करती है, उसको हम टोटली नेगेट तो नहीं कर सकते कि people do choose to live a certain way because they feel comfortable living that way. एंड हम उसको मेजर कर रहे होते हैं पॉवर्टी के भाई स्कूल नहीं भेजना या उस तरह नहीं करना, लेकिन उनकी सेंस में दैट वे ऑफ लाइफ इज नाइस एंड कंफर्टेबल। ओके, सो लाइक मैथर पार्कर में जो लोग भूख से मर रहे हैं, इट्स देयर चॉइस, और या फिर लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल लिविंग इन दैट कंडीशन। ओके, दैट्स again okay. Yes, Khurram, you want to add something? Khurram, you raise your hand. No. Okay, Sher Alam. Sir, I believe that there is some truth to what Sneha added, that there is a concept of culture of poverty, and there are certain values associated with this culture. That values do not let the people that are residing in that subculture of poverty to make themselves socially mobile or to jump to the upper or better tier of social hierarchy. There is a concept, sir. Okay, then you are basically emphasizing that this inequality should be there and we should not provide the services because they are not comfortable. उनको पानी नहीं देना चाहिए, गैस बिजली कुछ नहीं देना चाहिए। I mean, क्यों नहीं देना चाहिए? स्कूलिंग नहीं देनी चाहिए उनको? आपके ख्याल में ये गलत बात है सबको पढ़ाना, सबको सर्विसेज देना? Sir, I'm just talking about the existence, that this is something that exists. This sort of culture should not exist. I'm of the opinion that this culture should not be there, and the best thing we can do for these people is to educate them that they should get out of this concept. हाँ, जो अवेयरनेस की बात भी की है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, मुझे आपकी पॉइंट समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। ओके, यस समझ। सर मैं इसका आंसर इसी मैप से आपको एक सर देना चाहूँगा कि सर देखिए कि कुछ रीजन्स का हमारे पास अभी तक डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो सर ये इन इटसेल्फ ही एक इनइक्वालिटी है। तो मतलब ये है कि हमारी प्रायोरिटीज ही हमारी ऐसी नहीं है कि मतलब हम उन एरियाज को फोकस ही नहीं कर रहे जहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्पैरिटीज मौजूद है। ओके, जो आपने बात की है ना, मैंने वो गिलगित गेजी के ट्रेस डाउन किया है, बिकॉज दिस इज बेस्ड बाय यूएनडीपी आपका, और ये जो फंडेड था प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से। यूएनडीपी ना जब इंडिया का दिखाएगी ना शो करेगी, तो वो कश्मीर को भी नहीं शो करेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे रिस्पेक्ट। तो हमारे पास गिलगित एजी का डाटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है, बट
इसमें नहीं उन्होंने पब्लिश किया। सो इफ यू वांट टू सी दिस, ये आपके पास डाटा मिल जाएगा आपको आराम से, समझ। ओके, रिलेटिवली ये पुराना नहीं मिलेगा, लेकिन 2015 16 17 के बाद ये मिलना शुरू हो जाएगा डाटा आपको। यस समझ। सर इसके अलावा डेटा के अलावा भी ना सर, मैं ये पॉइंट बता रहा था कि हमारी मतलब जो गवर्नमेंट की है या जो भी है, हमारी प्रायोरिटीज़ मतलब कुछ इलाकों की तरफ नहीं है और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की तरफ है। तो इस वजह से वो जो स्पेसिफिक रीजन्स है वो ग्रो कर रही है उसी हिसाब से, और बाकी जो बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट की फोकस अभी उस तरफ है ही नहीं, तो वो फिर इसी हिसाब से पूरा उसकी तरफ जा रहे हैं। ओके ओके गुड। ओके समझ, लेट मी अनदर आपसे बात की, जो हम बैकवर्ड का जो वर्ड है ना वो भी डिस्कस किया जाता है इन टुडेज रिसर्च या एकेडमिया में। तो यू शुड से लीस्ट डेवलप या लेस डेवलप्ड। यस निदा। सर यहाँ इस ग्राफ से तो ये पता चल रहा है, इस मैप से, कि जो ज्यादा डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग के जो ज्यादा डेवलपमेंट है वो पंजाब रीजन में हो रही है। इवन बलूचिस्तान में जो है वो निगलेक्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, एजुकेशनल की तरफ भी इतनी वो तवज्जो नहीं है, तो पे ज्यादा हो सकती है। ओके एक हम ये जो बात रीजन हो करते सकती हैं, है। हाँ गुड पॉइंट। अब ये बात होती है ना जब विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की, आपने सुना वर्ड सुना होगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो यही है कि आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। जो गरीब होता है वो फंस जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, और जब तक वो उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अच्छी जॉब्स नहीं ले सकते। अच्छी जॉब्स नहीं लेंगे, इनकम पुअर आएगी। पुअर इनकम होगी तो उनके बच्चे भी फिर उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। इसको कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो रहना नहीं चाहते, उनके पास हालात ने उनको रहने पे मजबूर किया हुआ। ओके, इसको विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का नाम वर्ड यूज करते हैं उर्दू में। आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस विशियस, मुफलसी का जो हम कहते हैं कि द पॉइंट। नाउ ये जो विशियस साइकिल से निकालने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन की बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज करती हैं। उनको वो ये और गवर्नमेंट कहते हैं इनको पैसा दें, इनको फ्री एजुकेशन दें, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ओके, लेकिन गवर्नमेंट कितना बेयर करेगी? देन अगली फिर ये डिबेट अगर मैं जाऊंगा पॉवर्टी रिडक्शन की, फिर अलग डिबेट्स हैं, उसमें ये भी एक डिबेट आता है कि रादर देन गिविंग देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स और फ्री एजुकेशन, गिव देम स्किल डेवलपमेंट। उनको स्किल डेवलपमेंट करवाएं, उनको अच्छी जॉब्स दें, हुनर बनाएं उन्हें। सो अगेन इसमें बात जाएगी। सो यस, वो देन इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क कि ये पॉवर्टी वाला कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है। Okay, clear about this map before I begin, move on. हम जो बात करते हैं ना, वो हम बात करते हैं डेवलपमेंट डिस्पैरिटी की ज्यादा अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम बात कर लेते हैं कि जी इक्वल रिसोर्सेज। उसमें आप मुझे बताएं एज ए अर्बन प्लानर, आप अपने शहर को में क्या फैसिलिटीज या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं जो पूरे शहर में हो? लेट्स ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट। Yes, Ahmed. Sir, basic necessities, for example, sir, water, electricity, gas, sir, उसके बाद sir, education facilities, sir, health facilities, equal and good, और sir उसके बाद sir, sir equal and आप कह लेंगे sir good job opportunity, sir. Okay, good. Okay, now the point arises next is, should we focus on infrastructure development or socio-economic development? Okay, let me point out this way. Socio-economic development क्या है? I would say, okay, let me infrastructure से बात करते हैं। इसका road density है, length of roads divided by area of the district. जितना अच्छा रोड नेटवर्क एक एरिया में होगा, जितनी लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या रीजन, व्हाटएवर। सो आपका एक वैल्यू जो आएगी उसको कहते हैं रोड डेंसिटी वैल्यू। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर है। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का बाय इंफ्रास्ट्रक्चर चले छोड़े, मैं समथिंग फिजिकल बात करना चाह रहा हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट का इंडिकेटर बताएं।
अभी आपने बात की थी अहमद, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की, इसमें से मुझे कोई बना कर दें फिजिकल इंडिकेटर। यस हारून। सर परचेजिंग पावर। ओके, परचेजिंग पावर इट्स मोर लॉस सोशियो इकोनॉमिक की तरफ चले जाता है, मगर ठीक, ओके, परचेजिंग पावर। यस निदा। Number of schools provided, primary schools provided. नंबर ऑफ प्राइम, इसना क्या, प्राइमरी स्कूल्स पर स्टूडेंट्स, राइट? वी हैव टू इंडिकेटर हम क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं। ओके, यस मरियम। सर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कहना था मगर ओके, एक ही बात होगी थी। ओके, फ्रॉम नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स per population, per million population, let's say. Then we can say number of hospital beds per population, number of water connections per population, number of hand washing facilities per population. Okay, so these are infrastructure. Socioeconomic में बात करते हैं, so something which is not tangible, something not physical, like number of doctors per population. कॉलेजेस भी मेजर कर रहे हैं एजुकेशन उसको फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इज नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन. We can say student enrollment rate is a kind of a socio-economic development indicator. Okay, so something measurable. So अब the point हमारा यहाँ आता है कि as an urban planner, are we focused toward infrastructure development or socio-economic development? और अगर है तो let's say, okay, I would not say आप ये नहीं कहेंगे नहीं कि नहीं हमें, आप हमेशा as a planner diplomatic तौर पे यही कहेगा कि we should focus more, we should focus on both of them. आपके ख्याल में personally, in your opinion, किसको कितनी weightage देनी चाहिए? या समझा? सर मेरे ख्याल में तो 70-30 इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे उतना ही आपके पास क्या कह सकते हैं कैपेबिलिटीज जो होती हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर, लाइक उससे आपके अंदर और भी कैपेबिलिटी आएगी कि सोशो इकोनॉमिक सेक्टर को आप ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से है ही नहीं तो मतलब आप कैसे कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम कैसे करेंगे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं? तो पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा कि हम कर्जों पे पैसे लेकर आते हैं और आवाम में बांट देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वही कर्जे और फिर सूद, और मतलब हिसाब नहीं बनता ना, कोई बैकबोन होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो 70-30 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, yes, good point. Anyone else? Yes, Alia. So I would like to agree to the point that he just made. We were also studying this in another subject कि आप अपने basic sector में अगर invest करते हैं तो आपके जो जैसे infrastructure is a basic sector, तो आप उसमें invest करते हैं तो आपकी दूसरी sectors में जो non basic होते हैं और domestic होते हैं उनमें और jobs निकलती हैं और development होती है, तो multiplier effect basically आता है. अच्छा, हाँ, मैं आपका पॉइंट ऐसा है, I totally agree with that. So हम इसको कहते हैं कॉजियल थोड़ा सा रिलेशनशिप भी, थोड़ा सा कि it goes both ways sometimes. Infrastructure development is जो evidence suggests that infrastructure development is directly related to your economic growth. जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, राइट? बट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो मेजर ही नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात होती है तो हमारे प्रीडोमिनेंटली सारे इंडिकेटर्स सोशियो इकोनॉमिक में निकल जाते हैं। ओके, सो हमारा एंड प्रोडक्ट तो होता है कि जी HDI बेहतर करें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर करें। नाउ अगेन
अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी, उतने लोग, लेट्स से स्कूल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी अच्छी जॉब्स करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, समथिंग. ओके, सो नाउ इसको क्वांटिफाई करना कि विच इज द प्रीडोमिनेंट कॉज, या इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, ड्यूअल कॉज इफेक्ट हो जाता है इधर. बट इट इज एम्पिरिकली, इट इज generally it is suggested, it is you can say verified, empirically verified, that infrastructure जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. अब अगली रिलेशनशिप आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की. सालिया ने वही बात की कि शी इज सजेस्टिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी मच कोरिलेटेड विद योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट सालिया? Yes, sir. Okay. In the next coming slides, I will be going on through some case studies in Pakistan showing the difference existing inequalities in terms of infrastructure and socioeconomic, as well as comparative analysis के क्या किसको affect करता है. I'll go into it in the next lecture. Yes, Ahmed, you want to add something? सर मैं ये समझता हूँ कि सर दोनों के ऊपर फोकस होना चाहिए सर. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी ऊपर फोकस उतना ही होना चाहिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होता है सर. क्योंकि सर मुझे तो जो एग्जांपल पता है कि सर जिसने एक कंट्री ने सर दोनों चीज़ों पे काम करके सर ग्रो किया सर, वो जर्मनी के ऊपर है सर. इन 1930 सर कि उन्होंने सर जो पॉलिसीज अपनाई सर, ऑल्दो सर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है सर हिस्ट्री के ऊपर के क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे सर, पर सर उन्होंने जो पॉलिसी सर स्पेशली सर हिटलर ने जो पॉलिसीज अपनाई थी सर, क्योंकि सर अगर हम उनको स्टडी करें तो सर एक ऐसी नेशन सर जो बिल्कुल ही तबाह और डाउन थी सर, वो एक सुपर पावर बन गई सर. तो सर उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पे फोकस किया सर. इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने डेवलप किया सर साथ इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स भी उन्होंने लेके आया. तो सर उससे मैं समझता हूँ कि सर दोनों के ऊपर इक्वल, और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से पूछें तो सर ऑलमोस्ट सर 50-50 होना चाहिए सर. Okay, you're 50-50 also. Good. Okay, अभी हम बात कर रहे थे, चलें हम तो ओवरऑल बात करते हैं जेनेरिक, फिर हम बताएं स्पेशली हम बात करते हैं रूरल अर्बन में डिफरेंसेस, रूरल और अर्बन में. तो यहाँ भी इनइक्वालिटीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. हम जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे ना, जिस तरह आप मैप में देखें, जो रिलेटिवली आपको जो हाईली डेवलप्ड नजर आते हैं, आपको आ रहा है रावलपिंडी नजर आ रहा है, लाहौर नजर आ रहा है, कराची नजर आ रहा है, ओके, इस्लामाबाद आ रहा है. सो इस मैप के मुताबिक ये डेवलप्ड है. लेकिन लेट्स मैं आपको लाहौर पे बात करते हैं. लाहौर सिटी एंड लाहौर के आउटस्कर्ट्स में देखिए गांव, उसमें क्या रहा है, क्या इशू है. सो इट ऑल लाइक it point out to the fact that there are huge development disparities among rural and urban areas. इन दोनों की आपस में भी इतने ज्यादा गैप्स हैं. एंड और इसमें हम तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी डिस्करेज करी जाती है. तो इसमें एक आर्गुमेंट बनता है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज जितनी ज्यादा होंगी उतना बुरा आपका रीजनल डेवलपमेंट होगी, उतनी पुअर आपकी रीजन की परफॉर्मेंस होगी. तो रीजनल डेवलपमेंट में हम अर्बन प्लानिंग में तो खाली बात करते हैं, सिर्फ विद इन सिटीज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग. लेकिन रीजनल लेवल पर डिस्पैरिटीज की बात करें तो हम रूरल अर्बन को कंपैरिजन शुरू कर देते हैं एंड हाउ टू रिड्यूस सर्टेन फैसिलिटीज. अब मेरे ख्याल में आप क्लास के साथ भी आर्गुमेंट हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ, राइट, जिसमें सम स्टूडेंट्स सजेस्टेड दैट रूरल पीपल विच डोंट हैव फैसिलिटीज, okay, they don't have proper facilities, for which this is again argument of inequalities, why it is there, it should be discouraged. So by comparing both of them, rural and urban, and quantifying the exact problem, exact indicator, हम बहुत ज्यादा इंडिकेटर लेते हैं, एजुकेशन, ये इन सब का एनालिसिस करते हैं. तो इसमें हमें पता चल जाएगा इन सब इंडिकेटर्स में मोर और लेस करीब है, लेकिन इस इंडिकेटर में रूरल एरिया बहुत पीछे फॉलो करता है. देन उस तरह की हम अप्रोप्रिएट मेजर लॉन्च करते हैं, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी लॉन्च करते हैं कि इस चीज को इनहैंस किया जाए रूरल लाइफ में, या रूरल डेवलपमेंट में हमें इसको इनहैंस किया जाए.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रूरल डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड। हमने क्योंकि अर्बन प्लानिंग पे इतने ज़्यादा एम्फसाइज कर चुके हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज नाउ नॉट सो मच यू कैन से प्रायोरिटाइज्ड। ओनली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम रूरल को देखते हैं, लेकिन हम रीजनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रूरल को एरियाज को इग्नोर करना शुरू कर दिया हुआ है। ओके, अगेन दैट व्हाई इज दैट? हमने रूरल को क्यों इग्नोर करते हैं? हम अर्बन को क्यों एम्फसाइज करते हैं? यस अहमद सर मेरे जो जहन में बात आती है सर वो ये है कि सर बेसिकली सर ये जो फील्ड है सर, ये जो अर्बन डेवलपमेंट है सर या सिटी डेवलपमेंट है सर, ये बेसिकली सर इस पे काम ज़्यादातर उन नेशंस ने किया है जिनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन सिटी ओरिएंटेड है सर। तो इस वजह से सर जनरल फोकस ही सर इस बेस पर है सर। पर सर जो हमारे केस में जो सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है सर, इधर तो रूरल पॉपुलेशन ओवरऑल सर सिटी पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है सर। तो क्योंकि सर ये फील्ड जनरेट सर इन दैट सर इट इज माय ओपिनियन सर, आई मे बी रॉन्ग सर, आप ठीक इट्स फाइन, इट्स गुड। मुझे ये लगता है कि सर इस वजह से हो सकता है सर ये। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस मरियम। सर एक पॉइंट होगा पॉलिटिक्स के, पॉलिटिक्स में अर्बन एरियाज में काफ़ी इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट फिर अर्बन एरियाज में होती है और रूरल एरियाज फिर इग्नोर हो जाते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट। यस रिजवान। सर वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है कि अर्बन में ज़्यादा फिर इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अगर जिस तरह भी आप जो पाकिस्तान का हम मैप भी देख रहे थे, उसमें भी रीजनल वाइज भी देखा जाए तो उसमें भी ये होता है कि लाइक अगर पंजाब का देखा जाए तो ज़्यादा ग्रीन एरिया, लाइक वो ग्रीन इसी वजह से कि उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो कभी भी कोई बलोचिस्तान के लिए नहीं इनिशिएटिव लेगा, वो पंजाब के लिए होंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जिस तरह भी हो। ठीक है। और एक चीज़ मैंने उस पॉइंट लाइक उस प्लान पे भी ये कहनी थी कि जिसमें हमारी ना ये लाइक पॉपुलेशन वाइज भी अगर इसको देखा जाए प्लान, ये जो पाकिस्तान का प्लान था कि उसमें पॉपुलेशन वाइज लाइक बलूचिस्तान की तो पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो वो लाइक इस वजह से भी अफेक्ट आता है कि लाइक डिस्पैरिटी का कहें या लाइक इनइक्वालिटी का कहें, तो इस बेसिस पे होता है। ओके, सो जो इंडिकेटर होते हैं ना रिजवान, हम वो करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी कि दिस फैसिलिटी डिवाइडेड बाय इतने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, लाइक 90% पीपल have access to water in Lahore and 10% of people have access to clean water in Balochistan या in Quetta let's say। तो हम जब स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हम कंपैरिजन के लिए ये हम कर सकते हैं कंपैरिजन। सो पॉपुलेशन का ओके, आप जो कह रही हैं स्पेशल स्प्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, अब मरियम ने बहुत अच्छी बात की और आई एग्री विद हर दैट यस, because cities are known as engines of economic growth, and that is the one of the probable reason in which cities are often influenced by the political powerhouses, and especially in terms of capital cities या आपकी जो provincial capitals होते हैं, they are more emphasized because they are the hub of political powers के hub होते हैं वो। so उस वजह से भी आपकी सारी ओरिएंटेशन एक तो सिटीज पे होती है एंड देन कैपिटल सिटीज को, या जिसको हम कई दफा प्राइमरी सिटीज का वर्ड भी बोलते हैं। तो राइट, उन वजह से भी आपकी ये इनइक्वालिटी इनहैंस होती है इन वजह से। ओके, एंड ओके, then I think you have gone through these slides already, that inequality in terms of poor and living conditions, quality of life, you can say. I'll just quickly go through them. Okay, so and the next lecture we'll be studying about your case studies in Pakistan in which people have tried to measure development inequalities. So that's all for this lecture. Any question overall regarding this topic or this issue? Yes, Rizwan, you first.
सर बस एक चीज मैंने पूछी थी लाइक क्वेश्चन में कि हम लोग जिस तरह इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हों तो हम यही कोशिश होती है कि अब जिस तरह भी मैं बात जो करता पंजाब वगैरह की तरफ ही हम इनिशिएटिव लेंगे जी पंजाब में होंगे या सिंध में मोस्टली होते हैं लेकिन हम यही क्यों नहीं करते कि हम बलूचिस्तान में उस चीज़ का इनिशिएटिव लें ठीक है ताकि उधर के जो लोग हैं जो लाइक गुर्बत में पॉवर्टी वगैरह से गुजर रहे हैं वगैरह उस तरफ इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया जाए ताकि उनकी गुर्बत भी ख़त्म हो और उनको भी एक किस्म का इस चीज़ की तरफ चांस मिले कि यार हम वो आगे बढ़े तो हम लोग क्यों नहीं लाइक इस तरफ क्यों नहीं जाते कि हम लाइक बलूचिस्तान की तरफ जाएं या लाइक केपीके की तरफ जाएं ओके वो वही वाली बात है ना कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप करें पढ़ें और उसमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखें तो उसमें जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग केपीके पंजाब या सिंध पे फोकस करते हैं लेकिन डज नॉट मीन कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एटलीस्ट लाइक बेसिक एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन और ये बेसिक वाटर सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज हैं उनको पहुंचाएं तो अगर इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो ओके आई वुड से दैट इनिशिएटिव वुड बी बेटर मे बी बेटर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मे बी इस्लामाबाद और हाईली पॉपुलस एरियाज या ट्रैवल पॉइंट्स जो होते हैं आपके डिफरेंट एरियाज में एबटाबाद फॉर एग्जांपल अ हब बिटवीन पंजाब एंड वहाँ की बड़ी एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं वहाँ सो वो ठीक है लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट इट शुड बी इक्वल लोगों को पानी sanitation two things water and sanitation these are must then education health अब अगेन आपसे पूछूंगा एजुकेशन मोर इंपॉर्टेंट कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर हम वो बजट एलोकेशन वाली डिबेट में चले जाएंगे कि जी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सो इसको बैलेंस आउट करना इट्स ट्रबलसम लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं नेसेसिटीज हैं दैट शुड बी 100% प्रोवाइडेड all over the country should be consistent regardless of the cost लेकिन सर फिर देखा जाए तो फिर तो बात वही आ गई ना कि हम लोग एट द एंड मेन जो एक किस्म की यानी हम फिर पंजाब या सिंध की तरफ ही हम लोग लाइक उसको ही आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह की तरफ हम इसका इनिशिएटिव नहीं ले रहे वो तो फिर वहीं के वहीं रहेंगे नहीं इनिशिएटिव से मुराद कौन सा डिपेंड्स अपॉन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनिशिएटिव नर्स ने देखें नर्स ने अपना कैंपस लाहौर या पंजाब में नहीं बनाया उन्होंने जाके अपना बलूचिस्तान में कैंपस बनाया लाइक इज दैट इस तरह के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं आप हाँ एग्जैक्टली ये सीजन है ओके सो ये तो ऑफ कोर्स आर्गुमेंट होता है जिस तरह अगर 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स पढ़ें तो जो डिप्राइव्ड रीजन्स होते हैं उसके ऊपर स्पेशली 5 ईयर प्लान में एक बजट एलोकेट किया जाता है कि जी रिगार्डलेस ये फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में दी जाएगी जो तमीर पाकिस्तान का वर्ड यूज करते थे हम फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम रोड डेवलपमेंट कह लें वाटर सैनिटेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम रखते थे हम अगर आप तो स्पेसिफिक नाम है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होते थे उसके अलावा भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते थे जो हम इस तरह की डिप्राइव्ड रीजन्स के लिए लॉन्च करते थे अब वो अलग एक डिबेट शुरू हो जाती है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन फंड एलोकेशन रिसोर्स उनको पहुंचा है क्या यूटिलाइज हुआ है दैट्स अगेन इज अ डिफरेंट डिबेट लेकिन उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर least development lesser development I would say yes Mubashir yes सर मैंने सर एक छोटी सी एग्जांपल देने के लिए कि इंडिया में सर उन्होंने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई थी थोड़ी सी वो यूनिक थी जिस तरह सर उन्होंने कोई भी एक रैंडम सा विलेज सेलेक्ट किया विलेज लेवल पे सिर्फ उन्होंने ये किया कि सचिन तेंदुलकर को एक एग्जांपल है मेरे पास सर सचिन तेंदुलकर को उन्होंने सर 5 करोड़ का डेवलपमेंट बजट दिया कि वहाँ पे जाके लोगों के जो भी प्रायोरिटी है उनको सीवरेज की वाटर की सैनिटेशन वगैरह या कोई डेवलपमेंट जिस तरह की वो चाहते हैं वो 5 करोड़ की उनको डेवलपमेंट करवानी है उस विलेज में उसको मॉडल बनाना है या फिर इस तरह करके ना और फिर सर उसकी जो ऑडिट करनी या फिर वर्क एफिशिएंसी क्वालिटी वो सर उसके जिम्मा थी यानी कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने इस तरह करके सर इस तरह जो भी जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जिन लोगों के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा एतमाद है कि वो तो करप्शन भी नहीं करेंगे या फिर इस तरह ना वो डेवलपमेंट के लिए इस तरह बेनिफिट कर सकते हैं किसी भी विलेज लेवल पे सपोज अगर गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव लेती है ओके यस इट्स अ गुड पॉइंट कि हम इस तरह की ट्रस्टवर्दी या स्टेक होल्डर्स या जो कहते हैं इंटरमीडिएट पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारे रिजॉल्व या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आए
Yes, Mubashir, thank you. Yes, Ahmed. सर जो ये जो इशू है कि सर जो जैसा बलूचिस्तान का मैप हमने देखा सर के जो अंडर सर इतना डेवलप नहीं है सर, और सर साउथ सिंध के कुछ एरिया सर केपीके कभी का सर कुछ एरिया सर मैं ये समझता हूँ कि सर ये एक बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सर, और काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है सर कि ये क्यों सर ऐसा है, और सर इसमें काफ़ी सर हिस्टोरिक सर हमारी पॉलिसी मिस्टेक्स भी हैं सर पाकिस्तान की, कि जिनकी वजह से सर ये एट द एंड रिजल्ट निकला है सर मैं ये समझता हूँ कि सर मैं इतना डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा कि सर क्या पॉलिसी मिस्टेक्स हैं सर, पर सर मैं ये समझता हूँ कि सर अगर सिर्फ पॉलिसी चेंजेस ले आए जाए सर किसी भी एरिया में तो सर किसी ना किसी हद तक वो एरिया खुद ही ग्रो करना शुरू कर देता है, बजाय ये कि सर हम सर उसको कोशिश करते रहें कि सर जिस तरह हम बलूचिस्तान को सर अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं सर, जिस तरह नस्ट के भी सर इनिशिएटिव्स हैं, तो सर हमारी आर्मी भी इनिशिएटिव लेती है सर, गवर्नमेंट भी सर लेती है सर, तो सर पर सर अगर हम ऐसी पॉलिसीज बना दें कि वो खुद ही सर ग्रो करें सर, तो सर वो बेटर होगा, बजाय ये कि सर हम सर दूसरा एक और बहुत मेजर इशू सर जो मुझे नजर आता है वो ये है कि सर हमारे पास सर इतने रिसोर्सेज होते ही नहीं है सर इकोनॉमिक के, हम सर अपने सारे एरियाज को डेवलप कर सकें सर फॉर एग्जांपल सर ये जो लाहौर है या इस्लामाबाद है, ठीक है सर इधर डेवलपमेंट हुई है सर, पर ये जो डेवलपमेंट हुई है सर ये भी देखें सर इनमें से अक्सर डेवलपमेंट सर हमने बाहर से कर्जे लेके की है सर, और ये बेसिक नेसेसिटीज हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, ये कोई ऐसा नहीं है कि सर हमने लाहौर को दुबई बना दिया या इस्लामाबाद को हमने दुबई बना दिया सर, ये बेसिक चीजें हैं सर, मेट्रो या सर मास ट्रांजिट का जो इश्यूज हैं सर, तो सर हम इन्हीं को अफोर्ड करने के लिए कर्जे लेते हैं, तो सर अगर हम बाहर के ऊपर सर और ज्यादा हम कर ही नहीं सकते सर, मैं ये समझता हूँ सर, तो सर ये सर काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनका सर काफी डीप और थॉरो सर इनके ऊपर रिसर्च करके सर इनका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है सर। थैंक यू, थैंक यू अहमद। सो मेन पॉइंट इज जहाँ समझ में थोड़ी सी बात की तो वो यही पॉइंट है कि सबसे पहले हमारे पास डेटा होगा तो हमें पता चलेगा कितने लोगों को क्या चीज चाहिए, कौन से लोग कितनी चीज में डिप्राइव्ड हैं। जब हमें ये चीजें पता चलेंगी तो उस लिहाज से हम प्लानिंग या डेवलपमेंट करेंगे। तो उसके अलावा आप जितनी मर्जी पॉलिसीज या एड हॉक किस्म की पॉलिसीज लॉन्च करते जाएं, या जो प्रॉब्लम आती है उसकी नई पॉलिसी बना दें, जो इशू आता है उसकी नई अथॉरिटी बना दें, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। Solution is that policy should be designed based on the data you have, based on the data. And the main point again coming back is data creation या data storage. ये जब तक अच्छा नहीं होगा, for urban planners at least, all the plans and policy they are making are doomed to fail. So that is in my opinion again, but that is fundamental issues. डाटा आएगा, डाटा के बाद फिर एनालिसिस, फिर हम उस पर भी सोचेंगे कि कौन सा एनालिसिस लगाएं, कौन सी टेक्निक लगाएं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हमें कहाँ कॉज हो रही है। उसके बाद हम मैथमेटिक्स लेट्स से मॉडल्स बनाएं, सिमुलेशंस करें रन, फिर हमें आइडिया होगा, और फ्यूचर प्रेडिक्शन मॉडलिंग करें तो पता चलेगा हमें कि शहर को यहाँ देखना चाहेंगे या ये करना चाहेंगे, तो ये चीजें अगर इतनी चेंज करेंगे तो इतना इफेक्ट आएगा। आप इसको इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ले जाएं, एक्सपेरिमेंटेशन में ले जाएं, जहां ले जाएं। सो कोर इशू इज डाटा क्रिएशन, डाटा स्टोरेज, डाटा अवेलेबिलिटी। यस अहमद। जी सर मैं आपसे एग्री करता हूँ सर। मेरा जो पॉलिसी की तरफ जो मैंने बात की ना सर, वो मेरा जो फोकस था सर, मैं ये बात कर रहा था जिस तरह फॉर एग्जांपल सर लैंड रिफॉर्म्स होते हैं सर जब हम हमारी क्रिएशन के टाइम 1947 में सर इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स अपने कर लिए सर, और हम नहीं कर सके सर। उसकी वजह से क्या हुआ कि सर जो हमारे सर बलूचिस्तान है या सिंध है या इवन पंजाब के भी काफ़ी एरियाज सर जो लैंड है सर वो कुछ लोगों के पास है सर। तो अब फॉर एग्जांपल इन बलूचिस्तान के केस में सर कि हम लोग ये नोटिस इतना नहीं करते कि सर हमने कोशिशें की हैं सर, रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान से निकले हैं सर गवर्नमेंट ने सर उनके ऊपर रॉयल्टी देते रहे हैं सर, पर वो रॉयल्टी लोगों तक नहीं पहुंच सकी, आम आवाम तक सर, वो एक खास तबके तक पहुंचती रही है। उसके नतीजे में सर उस तबके के पास तो सर रिसोर्सेज आते रहे हैं पर आवाम डिप्राइव्ड रही है। और सर एक और चीज भी हमें ये पता चलती है कि सर कि हम जब
ये चीजें देखते हैं कि सर ये सिंध में और बलूचिस्तान में और KPK के भी कुछ एरियाज में सर ये जो जागीरदाराना निज़ाम है सर, ये लोग सर लोगों को तरक्की करने ही नहीं देते सर, मतलब एजुकेशन की तरफ जाने ही नहीं देते सर। ये तो बातें हम काफी अरसा तक सुनते रहे हैं। तो सर मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम लैंड रिफॉर्म 1947 में ही कर देते तो सर इतने जो जागीरदार लोग थे सर, इनको इतनी ज्यादा जमीनें मिलते ही ना कि वो आगे इस तरह के मसाइल आते सर। मेरा पॉलिसी के ऊपर ये पॉइंट था सर, इस तरह की चीजें सर। ओके ग्रेट। तो लेकिन हमें एज अ प्लानर वी आर कंसर्न्ड विद द फ्यूचर। हम बैक एंड पे हमने प्रॉब्लम्स बन चुके हैं, now we want solutions and we want to move forward. Okay class, thank you for joining today's lecture, and I'll stop the recording now. Thank you.